हाय गाइस, आज मैं बहुत गुस्सा हूँ। मतलब मैं बेइंतहा गुस्सा हूँ। आप प्रोडक्ट को ऐसे धो के आप मुझे नहीं भेज सकते। मैं कुछ नहीं कर सकती। यू नो, व्हेन यू बाय द हाईएस्ट क्वालिटी आउटफिट और लेट्स से द मोस्ट एक्सपेंसिव पीस ऑफ क्लोथिंग, यू डू नॉट ट्रीट इट बैडली, यू डू नॉट रब इट। अगर आप कपड़ों को भी अच्छे से नहीं धोते, वो भी फट जाते हैं, उनका भी रंग निकल जाता है, तो फिर भी रियल बाल हैं। So today I'm going to show you a technique of washing. Please follow that. I mean, this just breaks my heart यार, कि मैंने काफ़ी बार यूज़ की है, वॉश भी की है, फिर भी ऐसी लगती है। ऐसे होना नामुमकिन है। अगर आप इसे अच्छे से वॉश करो तो इट्स नॉट, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग अ सैलून यू आर टेकिंग इट टू। सैलून्स इन इंडिया आर नॉट इक्विप्ड टू वॉश हेयर एक्सटेंशन। उनको किसी ने सिखाया ही नहीं है। मतलब इंडिया में लोगों को ही कम पता है हेयर एक्सटेंशन होती क्या है। अब उन्हें धोना तो मतलब और भी मुश्किल बात है। मतलब मैं आपको दिखाने वाली हूँ इसे कैसे वॉश करना है। जस्ट फॉलो दो स्टेप बाय स्टेप। आपके बाल हमेशा ऐसे ही लगेंगे। ये स्कैल्प लाइन है, ये सेम स्कैल्प लाइन है जो कि काफ़ी बार यूज़ हो चुका है, वॉश हो चुका है। ऐसा कभी नहीं हुआ है वो ट्रीटमेंट कर। मतलब आई एम आउट ऑफ वर्ड्स राइट नाउ। Gather some water in the basin or in a bowl. Add few pumps of a gentle shampoo. I'm using Arata. Mix it well. Make sure hair is not tangled off the topper or stuck in the clips. Keep the clips shut when you dip your hairpiece in the shampoo water. Clean your hairpiece gently, strictly no rubbing or scrubbing the hairpiece. Use your fingers to get the length of your hairpiece. For donut, make sure to brush it gently and remove the tangles with a wide tooth comb and then dip it in a shampoo water to give it a clean wash. Again, I'm repeating myself, strictly no scrubbing the hair. Simply rinse it under clean water clockwise while holding the hairpiece to avoid roughing it up. Roughing से याद आया, conditioning is even more important. So use a generous amount of conditioner and work with the length of your hair topper and put it on the roots as well. For hair donut, again put it clockwise and wash it gently. This way you end up washing your hair pieces and conditioning them well without tangles. Here's your donut, which is very drenched. First, make sure you're detangling very gently. अड़ाना नहीं है ऐसे because ये गीला है अभी. Then it look like a jhadu, which we don't want it to look like a jhadu, right? I want to say something but I wouldn't. I wanted to say, ये मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं जो मैं आपको देती हूँ, आप उनका ध्यान रखो. I know आप इन बच्चों को खरीद रहे हो, but फिर भी मेरा दिल दुखता है. But once you've done this and you let it naturally dry, I can guarantee it will not look like this ever. Here it is, just out of the wash basin. And once it's drenched, it's damp, this is the time to decide whether you want a parting on this or you want it backcombed. I'm going to show you how you can backcomb this when you're drying it and it'll stay like that till you actually decide to make a parting in it. So I'm going to take it at the back. मेरे पास कोई सुपर पावर्स तो नहीं है गाइस. मतलब वॉश करने के बाद नॉर्मल वॉश किया है जैसे बाल वॉश करते हैं, लेकिन ये ऐसा तो नहीं दिख रहा है. आई कैन स्टिल डिटैंगल दिस टू अ पॉइंट दैट इट विल लुक नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस बट इट विल लुक बेटर, विच आई टीच यू इन नेक्स्ट वीडियो. बट फॉर नाउ आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू. अगर आप इस तरीके से वॉश करें जैसे मैंने दिखाया, और अगर इस तरीके से ड्राई करें तो आप पार्टिंग भी हाइड कर सकते हैं. इफ आई वॉन्ट द पार्टिंग टू स्टे देन आई वुड हैव ड्राइड इट इन दिस direction, in the direction where I want the hair to be. Whatever you do, just be really gentle with it. As I said, ये मेरे बच्चे हैं जो मैंने आपको दे दिए हैं, आप इनका ध्यान रखो. आई नो आप लोगों ने इन्हें खरीदा है, पर फिर भी मेरा दिल दुखता है जब मैं इन्हें देखती हूँ टूटते हुए या मरते हुए. सो प्लीज़ इन बालों को मत मारो, ये रियल बाल हैं. एंड एज आई से, आई कैन गारंटी यू it last you for 3+ years if you wear it every day and if you take good care of it. Hair toppers and wigs, I understand, ये एरिया से बाल जाने लगते हैं. सो व्हेन यू नो कि यहाँ से बाल जा सकते हैं तो इस एरिया पे बहुत जेंटल रहिए. इस एरिया को हार्शली ब्रश मत ही करिए, तो आप 3 साल लगातार पहन पाओगे. विग्स में नॉर्मली यही होता है कि वो कहते हैं यहाँ से बाल चले गए सिल्क पार्टिंग से. क्यों गए? क्योंकि इस एरिया में आपने उसे शायद थोड़ा ज़ोर से ब्रश किया है. सो मत करो गाइज, प्लीज़ मत करो. मैं आपके फ़ायदे के लिए कह रही हूँ. आप इतना महंगा प्रोडक्ट खरीद रहे हो, और अगर आप चाहते हो वो सालों साल जिए तो कुछ टेक्निक्स हैं वो फॉलो कर लो, और कुछ नहीं करना आपको. बस एन्जॉय गुड हेयर.